Assalamu alaikum, everyone. Very good evening to everyone. This is Faisal Nadeem from AMP, Association of Muslim Professionals. A very warm welcome to everyone. Today we are here for AMP free employability training programs. Topic for today is developing leadership skills. Thank you, everyone. I would now do a short presentation about AMP. AMP is a non-for-profit organization registered under Section 8 of the Companies Act 2013, Government of India, for providing voluntary social service to meet the needs of underprivileged individuals. That is, upliftment of the underserved and needy through education and vocal training, employment support, medical relief, economic empowerment, student mentorship and guidance. The above services are provided to needy individuals irrespective of caste, creed, and religion. Employment Assistance Cell. We all are witnessing AIF's success as one of the most admirable national level NGO striving for 3 E's: education, employment, and empowerment. Keeping in mind AIF's core objective of supporting the underprivileged, promoting education, and creating economic empowerment, AIF had launched a special project with the name of AIF Employment Assistance Cell during its initial stages of formation. Today, it is one of the core projects of AIF. Major EAC activities. Our major EAC activities include, but are not limited to, conducting job fairs, job drives, employability training programs in colleges, skill training company tie-ups, candidate mobilization, skill development courses. Job fairs. Job fair is one of the flagship projects of AIF, and we have successfully organized 43 job fairs till date. Every job fair has participation of minimum 50 companies and 2,000 plus candidates. AIF have organized job fairs in the past in collaboration with Thane Police, Aurangabad Police, West Bengal Minority Finance Development Corporation, Andhra Pradesh State Minorities Finance Corporation, and other reputed NGOs. These government organizations and NGOs collaborate with AIF as local partners and take care of the local ground promotions in the job fair arrangements. AIF invites corporates like TCS, Asian Paints, Reliance Group, Cafe Coffee Day, MC McDonald's, Team Lease, Tech Mahindra, and other reputed corporates in the job fairs. Job drives. Job drives are similar to job fairs but are organized on a much smaller scale compared to job fairs. In a job drive, we typically invite only up to 2-3 corporates who have specific openings and advertise their openings profiles in order to attract suitable candidates. We conduct job drives every week throughout India in collaboration with other consultancies and NGOs through the help our chapters. These local partners do ground promotion for candidate mobilization and take care of all the arrangements of the job drives. In case of multiple openings, we also organize special job drives for a corporate wherein we invite only one corporate and help them fill their requirements. Employability training programs. AIF Employability Training Program, or ETP, has been developed to assist job seekers find the right job at the right place at the right time and to become the right fit in a present-day modern organization. Our ETP trainers are seasonal professionals who have in-depth understanding of employability training and committed to investing their valuable time, resources, and knowledge in grooming the candidates. We team up with colleges in different cities and conduct ETPs there on a regular basis, usually once every month. Skill training, company tie-ups, and candidate mobilization. AIF have partnered with reputed skill training companies like Tata Trust, Whirlpool, Tech Mahindra Foundation, etc. We have also arranged skill training melas in Mumbai by inviting around 20 skill training companies to hire and train unskilled candidates who could not pursue their higher studies after 10th and 12th standard. Candidate mobilization.
AIF has mobilized candidates for various skill development courses like home appliances technician, AC technician, mobile repairing technician, and solar engineering under Skill India mission in centers all across India. Our achievements: employment assistance, 43 plus job fairs, out of which nine job fairs are online, 275 plus job fair drives, out of which 20 online job drives, 220 plus employability training programs, out of which 37 are online, 100 plus mock interviews in colleges, 25,000 plus candidates placed in jobs. Career fees, organized 6 career fest, benefited 1,50,000 plus students. We have also have a new initiative, empowersjobs.com, connecting right talent with the right opportunity. Empowers.com was launched on 6 December 2020. It is a unique job portal with comprehensive offerings introduced by AMP India Foundation for job seekers, especially those hit by COVID pandemic. Thank you. Well, thank you, everyone. Now I would now introduce the speaker for today, Irfan Mullah, a mechanical engineer with 4 years of experience in chemicals, pharmaceutical, and oil and gas, in maintenance and projects, have worked in 12 different countries in different roles. Now I would like to welcome Mr. Irfan Mullah to please start the session. Thank you, sir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all participants. And first of all, I would like to thank MP Association of Muslim Professionals, who is doing such a wonderful job, wherein they are developing and enhancing the employability skills of our young graduates in all streams. And this is my second lecture in this series. And today, inshallah, I'll be talking on developing leadership skills. Now, आगाज तेरे नाम से कार साजे दो जहां, कुदरत तेरी सबसे बड़ी, तू सबसे बढ़कर मेहरबा. Bismillahirrahmanirrahim. Now let us go into the presentation. So today we will be talking on developing leadership skills. Now in today's world, everybody talks of leadership, leaders. So we will try to understand through this seminar or this presentation, what are the leadership skills and how we can acquire them, and what is the today's agenda for how to develop leadership skills. Now, the agenda for today is what are the realities of today, what is leadership, what do leaders do, key leadership skills, ways to develop leadership skills, and summary. Now, in today's, what is the reality of today? The reality of today is that there is a global competition which is today's reality is a global competition which is forcing changes in all aspects of our society, namely business, the government, the education, and the healthcare, and whatever we do. Similarly, customers are demanding more, and we have to change how we work and manage in all aspects of our organizations and all processes we used to do our work. Now, we live in a new era, and in this new era, we know what are the old paradigms or what were the old way of life.
like we have one job or one business, and we go to work, we do our job and come home. This was the old way of working or old way of life. Now, in new paradigm, we have two jobs. First is we have to do our work. हम जो करते हैं वो हमको करना है. And second is improve on how you do your work. और दूसरी चीज ये है कि हम जो भी काम करते हैं उसमें हम दिन ब दिन कैसे सुधार लाए, उसमें हम दिन ब दिन कैसे तरक्की करें, उसमें हम दिन ब दिन कैसे मास्टरी हासिल करें. और ये सब हासिल करने के लिए नाउ द की इशू इज हाउ टू बैलेंस, कि हम कैसे तवाजुन लाए इन दो चीजों में, एक डूइंग में और एक इम्प्रूविंग में. भाई मैं अगर एक टीचर हूं तो एक तो मैं अपना काम खुद कैसे करूं, मैं बच्चों को कैसे अच्छे पढ़ाऊं, और दूसरा काम मेरा ये रहेगा कि मैं अपनी टीचिंग स्किल्स में कैसे इम्प्रूवमेंट लाऊं, उनको कैसे मैं बेहतर बनाऊं, ताकि मैं बच्चों को जो पढ़ा रहा हूं वो बच्चों को समझ में आए और बच्चे उस पे जो है अच्छे तरीके से उसको समझकर उसको सीख कर आगे बढ़े. So now we are dealing with two aspects. Number one is doing and number two is improving. काम को करना है और दूसरा बेहतर तरीके से करना है. Now leaders क्या करते हैं? Leaders help us make the needed change. लीडर्स जो है, जो हमको जरूरी तब्दीली लानी है, जो जरूरी बदलाव लाना है, जो जरूरी सुधार लाना है, इम्प्रूवमेंट लाना है, उसको हासिल करने के लिए कोई हमें गाइड करे, वो हमारा लीडर है. तो लीडरशिप हैज अ ग्रुप ऑफ पीपल मूव फ्रॉम वन पैराडाइम टू अनदर. Leadership, the art of getting someone else to do something you want done because he wants to do it. अब हम देखेंगे कि भाई we have so many types of leaders. हर जगह हम देखते हैं कि लीडर्स के गुणगान गाए जा रहे हैं, लीडर्स की तारीफें की जा रही हैं, लीडर्स को बुरा भला भी कहा जाता है. और लीडर्स जो है they are available in every walk of life. If you take a political, a military, a business, an academic, a religious, or in sports, and there are many more areas and facets of life where you'll find leaders. Now, change requires both in leading and managing. जैसे हमने पहले देखा कि भाई एक तो मुझे अपना काम खुद करना है और उसमें सुधार लाना है. अब हम देखेंगे कि भाई लीडर का जो रोल रहता है वो क्या रहता है. लीडर का जो रोल है वो एक तो लीडिंग में है और एक है मैनेजिंग में. तो लीडिंग एंड मैनेजिंग ये दो रोल होते हैं जो तब्दीली लाते हैं थ्रू लीडरशिप. तो लीडिंग में क्या है? Moving between the paradigms, doing right things, creating improvements, leading and developing people. Or managing में, in managing, you work within a paradigm, doing things right, holding the gains and managing the processes. जो भी तरीके से हम काम कर रहे हैं, हम उसको मैनेज करें. Now, in both leading and managing, what we need, we lead people with a direction, communication, resources, we coach and we reinforce. And while doing all this, leading the people, we manage the processes. And after managing this, we get a happy customer. We get a happy customer. Now, between this leading the people and managing the processes,
there is a feedback system that whatever direction is given, whatever communications are given, what is the feedback on them? Whether they are working or do we need to do something differently? And this is the process which is called for leading and managing. And after we employ this process, हम इसको इस्तेमाल करेंगे इस तरीके कार को, तो हमको जो है healthy processes and serving as happy customers. Now, if we see typically how much time is spent on doing and improving work by the various classes of people or various role holders, जैसे हमारी कंपनीज में एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, फिर उसके ऊपर मैनेजर्स होते हैं, और फिर मैनेजर्स के ऊपर दूसरे लोग होते हैं, या मैनेजर्स के नीचे के लोग होते हैं. तो लीडिंग में जो है एग्जीक्यूटिव 90% अपना वक्त जो है वो सर्व करता है, और मैनेजिंग में जो है वो 110% वक्त सर्व करता है. मैनेजर्स टिपिकली they spend around 70% of the time in improving the work or leading the work, and managing and doing the work 30% of the time. And others in leading, they spend very less time, around 30%, and in doing 70%. यहाँ हम ये भी समझ सकते हैं कि लीडिंग एंड इम्प्रूविंग जो वर्क है ये हम दूसरों के लिए करते हैं, हमारी टीम के लिए करते हैं, हमारे सबऑर्डिनेट्स के लिए करते हैं, जो हमारे अंडर है उनके लिए करते हैं. एंड मैनेजिंग एंड डूइंग वर्क जो है ये हम खुद करते हैं. तो इस तरह से बात समझ में आ जाएगी कि हमारे जो रोल है, इफ आई एम अ मैनेजर, व्हाट शुड बी माय डूइंग एंड व्हाट शुड बी माय वर्क फॉर द लीडिंग एंड इम्प्रूविंग द वर्क. तो अब हमको देखना है कि लीडर्स जो है वो करते क्या है. लीडर्स क्या करते हैं अलग से, जिसकी वजह से हम उनको लीडर कहते हैं, या हम उनके पीछे चलते हैं, उनको फॉलो करते हैं. तो लीडर्स जो है मेनली 4 काम करते हैं. नंबर 1, दे प्रोवाइड डायरेक्शन. वो हमको जो है सिम्त देते हैं कि किस तरफ जाना है, हमें रास्ता दिखाते हैं. वेयर वी आर हेडेड, है ना, हम कहाँ जा रहे हैं वो हमें बताते हैं, हमारे स्टार्ट बताते हैं, हमारा एंड बताते हैं, हमारी जर्नी बताते हैं. सिमिलरली टू रीच टू दैट डायरेक्शन दे कम्युनिकेट, बातचीत करते हैं, मवासिलात करते हैं, दे टॉक द व्हाई एंड बेनिफिट्स ऑफ द डायरेक्शन. और ये सब हासिल करने के लिए क्या करते हैं वो, दे कोच, दे इनेबल, दे काउंसिल. वो लोगों से बात करते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं, लोगों को इंकरेज करते हैं, अपनी टीम को जो है वो शाबाशी देते हैं, उनसे बातचीत करते हैं. अगर कोई कमी ज्यादती है तो वो उनसे डिस्कस करते हैं, उनको बताते हैं, उनको समझाते हैं. और ये सारी चीजें होने के बाद जब हम अपनी मंजिल मकसूद पे पहुंचते हैं तो दे रिकॉग्नाइज द रिजल्ट्स एंड रीइंफोर्स डिजायर्ड बिहेवियर. तो हम अपनी मंजिल को पाने के बाद वो क्या करते हैं, वो नतीजों को जो है वो पहचानते हैं, नतीजों को जाहिर करते हैं और बताते हैं कि भाई ये हमारा मकसद था इस जर्नी का, और ये मकसद हमने हासिल किया है. और फिर उस मकसद को हासिल करने में जो हमारा बर्ताव है, जो हमारा काम करने का तरीका है, उसको जो है वो मजबूती से पकड़ के रखने कहते हैं. सो अब ये डायरेक्शन प्रोवाइड, वो डायरेक्शन प्रोवाइड कैसे करते हैं लीडर. तो डायरेक्शन प्रोवाइड करने के लिए जो है वो एक विजन बताते हैं कि हमारा मकसद क्या है, व्हाट सक्सेस वी आर लुकिंग फॉर, हम क्या चाहते हैं. देन दे डिसइंटीग्रेट इट इनटू ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स एंड स्ट्रेटजीज एंड इनिशिएटिव्स. फिर वो बताएंगे कि भाई ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कि हम कैसे इस सफर पे चलें, हमें अपनी मंजिल कैसे पानी है, और फिर गोल्स क्या हमारे, मकसद क्या हमारा, हाउ मच. हमको जो है समझो बॉम्बे से दिल्ली का सफर करना है
ये हाउ मच हो गया और बाय व्हेन, कब तक करना है। आज हमको निकल के कल दिल्ली पहुंचना है, ये जो है हमारा मकसद हो गया। ऐसा नहीं कि भाई हम आज निकल रहे हैं और 10 दिन बाद दिल्ली पहुंच रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, ठीक है। देन they tell about the strategies और they define and they decide कि भाई हमारा फोकस क्या रहेगा। हम जो है दिल्ली पैदल जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे, हवाई जहाज से जाएंगे, ये स्ट्रेटेजी रहेगी। वो तरीके कार समझाएंगे हमको एंड इनिशिएटिव्स। देन व्हाट स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स वी विल अंडरटेक। अब हम यहाँ से दिल्ली जा रहे हैं तो दिल्ली जाने के बाद हम वहाँ क्या करेंगे। हम दिल्ली में जो है 100 दरख्त लगाएंगे, हम दिल्ली में 2 स्कूल्स का इंस्पेक्शन करेंगे। तो ये जो है ये हमारा जो है ये इनिशिएटिव रहेगा। आई मीन वी आर टेकिंग अप दिस प्रोजेक्ट टू गो फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली फॉर इंस्पेक्टिंग 3 स्कूल्स। फिर उसके बाद लीडर का जो सेकंड एस्पेक्ट होता है वो कम्युनिकेट करने का रहता है, बातचीत करने का रहता है, बताने का रहता है। तो communicate the direction, what is that? It is to provide understanding and hope. अगर हम लोगों को बताएंगे कि नहीं कि भाई हमें बॉम्बे से दिल्ली जाना है, तो लोगों को समझेगा नहीं कि भाई हम जा कहाँ रहे हैं, अच्छा दिल्ली जाके हम क्या करेंगे। तो ये सारी डायरेक्शन वो कम्युनिकेट करते हैं, वो बताते हैं। So the direction we are pursuing, what benefits we expect to get and what progress results achieved to date, यानी आज तक हमको क्या जो है नतीजा मिला है। Then communication should be clear, concise and continuous. Communication जो है, जो कुछ भी बात की जा रही हो वो साफ हो, मुख्तसर हो और मुत्तसिल हो। ऐसा नहीं कि भाई एक जुमला आज बोल रहे हैं, एक जुमला कल बोल रहे हैं, एक टॉपिक परसों बोलेंगे, ऐसा नहीं। हम एक सिटिंग में, हम एक मुलाकात में, एक मीटिंग में जो है वो सारी कम्युनिकेशन दे दें। देन वेराइटी ऑफ मीडिया शुड बी यूज्ड। अब ये कम्युनिकेशन के लिए हमको जो है, हम या तो एक क्लासरूम में कम्युनिकेट करें, एक कमरे में करें, एक कॉन्फ्रेंस रूम में करें, या हम जो है वो टेलीफोन से करें, मोबाइल से करें, या हम जो है वो ईमेल से करें, या हम बातचीत करें। बट ऑलवेज talking one to one, face to face is always beneficial and clears lot many doubts than in written communication. क्योंकि मैं लिखता कुछ इंटेंशन से हूं, सामने वाला पढ़ता कुछ इंटेंशन से, ठीक है। Then the third aspect of leaders is to enable. लोगों को जो है वो तैयार करना है, लोगों को प्रोत्साहन देना है, उनको इनकरेज करना है, उनको मोटिवेट करना है। तो सेटअप पीपल फॉर सक्सेस। लोगों को क्या करते हैं लीडर, कामयाबी से हमकिनार करते हैं, कामयाबी की तरफ लेके जाते हैं, सक्सेस की तरफ लेके जाते हैं। और ये सब करने में, अब बम्बई से हम दिल्ली जा रहे हैं, है ना। बम्बई से दिल्ली हम फुकट में तो नहीं जाएंगे, फ्री में तो नहीं जाएंगे। तो लीडर क्या करता है, ही प्रोवाइड्स रिसोर्सेस। वो जो है जराए हमको मुहैया कराता है, लोग मुहैया कराता है, टाइम और पैसे मुहैया कराता है। देन ही प्रोवाइड ट्रेनिंग, वो ट्रेनिंग देता है। अगर किसी के पास मुंबई से दिल्ली जाने की हवाई जहाज की ट्रेनिंग नहीं है, तो हवाई सफर की वो थोड़ी ट्रेनिंग देगा आपको कि भाई कैसे चेक इन करना है, लगेज कहाँ डालना है, कैबिन में कितना सामान ले जाना है, ये सारी चीजें वो बताएगा। एंड बिल्ड नीडेड स्किल्स। फिर उसके बाद हमको जो है वहां जाके अगर 3 स्कूल का मुआयना करना है, इंस्पेक्शन करना है, तो हम क्या करेंगे वहां पे। हम स्कूल में जाके मिले, नाश्ता किए, चाय पिए, घूमे, आ गए, ऐसा नहीं होगा। बल्कि हमको उस इंस्पेक्शन के दौरान क्या क्या करना है, क्या क्या सवालात पूछने हैं, असातिज़ा से क्या पूछना है, बच्चों से क्या पूछना है, और स्कूल के नॉन टीचिंग स्टाफ से क्या पूछना है। तो पूरी जो है वो इटिनरी रहेगी, पूरा जो है हमारा सफर का पूरा जो है मकसद रहेगा, और उसके बारे में आपको ब्रीफ किया जाएगा। देन प्रोवाइड मेथड्स टू अकम्प्लिश असाइन्ड टास्क। फिर हम काम कैसा पूरा करेंगे,
हम जो सवाल पूछेंगे उसके जवाबात या तो ठीक करने के होंगे या उनके जवाबात लिखने होंगे, या हम जो बात कर रहे हैं उसको जो है वो रिकॉर्ड करना होगा। ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। अब इसमें ये सारी चीजें बताने में अगर आपको लगता है कि कुछ मुश्किलात हैं, कुछ बैरियर्स हैं, वो बैरियर्स आप डिस्कस करेंगे, उन बैरियर्स को रिमूव किया जाएगा और इस तरह से जो है लीडर विल कोच यू एंड काउंसिल यू एंड मेंटर यू, और आपको जो है वो अपने मकसद के लिए तैयार करेगा। और चौथी जो चीज होती है लीडर की, दैट इज टू रिकॉग्नाइज एंड रीइंफोर्स, पहचानना और मजबूती अता करना, समझे कि नहीं। और पहचानना क्या है, आमतौर पे लोग जो है कि गलत काम कर रहा है तो उसको पकड़ के उसको डांट डपट करते हैं, लेकिन लीडरशिप स्टाइल में जो है आपको सही काम करते हुए लोगों को पकड़ना है। कैच पीपल डूइंग राइट थिंग्स एंड रिकॉग्नाइज अकम्पलिशमेंट्स एंड रिजल्ट्स। भाई आपकी टीम ने जो काम किया है, अच्छा काम किया है, उसको पहचानो और उसकी तारीफ करो और उसके नतायज को जो है वो पहचान के उसको जाहिर करो, और इन नतायज के ऊपर उनको जो है एक तो साइकोलॉजिकल रिवार्ड दो, नफ्सियाती तौर पे जो है उनको उनको जो है वो इनाम दो। और नफ्सियाती तौर पे इनाम क्या होगा कि भाई हम एक ग्रुप ऑफ लोगों में बताएं कि भाई ये 4 लोग जो है बम्बई से दिल्ली गए, इन्होंने 3 स्कूल का इंस्पेक्शन किया और बहुत अच्छा काम किया, ये एक साइकोलॉजिकल रिवार्ड हो गया। देन फाइनेंशियल रिवॉर्ड, अगर ये कोई कंपनी है तो कंपनी जो है उनको या कैश प्राइज अनाउंस करे या प्रमोशन अनाउंस करे या उनके ग्रेड में इंक्रीमेंट अनाउंस करे, ये एक फाइनेंशियल रिवार्ड हो गया। देन रीइंफोर्स डिजायर्ड बिहेवियर, कैच पीपल डूइंग राइट थिंग्स, तो जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उसको जो है बार बार दोहराना है, जताना है, ताकि बाकी लोग भी उस तरीके से काम करने लगे। ये जो है मजबूती लाएगा हमारी टीम में। पीपल वांट एंड नीड फीडबैक, ये कौन कहता है? कोच करके एक न्यूयॉर्क की मेयर है, उन्होंने ये कहा कि हाउ आई एम डूइंग, पीपल नीड टू नो। अगर मैं सुबह से शाम तक एक कंपनी में काम कर रहा हूँ और दिनों से, महीनों से, हफ्तों से काम कर रहा हूँ, और अगर मेरे काम के बारे में मुझे फीडबैक नहीं मिलेगा मेरे बॉस से, मेरे कलीग से, तो मेरे में इंप्रूवमेंट कैसे आएगा? तो इसके लिए पीपल वांट एंड नीड फीडबैक, एंड फीडबैक नीडेड फॉर इम्प्रूवमेंट। एंड की टूल्स में क्या आता है कि भाई ये जो कुछ भी काम हो रहा है इसका मैनेजमेंट रिव्यू ले, हम मीटिंग ले, और मीटिंग में जो है ये सारी बातें आए और उसमें जो है हम हमारी टीम के गुणगान करें, इन्होंने अच्छा काम किया, इन्होंने बहुत अच्छे से जो है जो टारगेट था वो अचीव किया और ये प्रोजेक्ट जो है वो पूरा हुआ। जॉन कॉटर करके एक मैनेजमेंट गुरु हैं, इनके जो है वो 8 स्टेज हैं फॉर सक्सेसफुल चेंज। He has given 8 stages towards achieving a successful change. और वो क्या है? Number 1 is establish a sense of urgency, positive vision of being a premier company. हमको जो है सबसे पहले ये बताना है कि हम जो भी करने जा रहे हैं ये जरूरी है और ये अर्जेंट है, ये होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई हम आज कुछ तय कर रहे हैं और 1 साल बाद फिर हम उस पर बात करेंगे, ऐसा नहीं, बल्कि अभी हमने जो तय किया इस पे अभी हमको काम करना है। देन सेकंड इज क्रिएट अ गाइडिंग कोएलिशन। अब ये जो काम हमको करना है, ये जो टास्क है, इसके लिए हमको एक टीम बनानी है और इस टीम में जो है एक चैंपियन रखना है, एक लीडर रखना है जो बाकी सारे लोगों को जो है वो कोच करे, साथ में लेके चले। थर्ड एस्पेक्ट इज डेवलप विजन एंड स्ट्रेटेजी। हमको जो है
वो एक मकसद और तरीकेकार जो है वो हमको बनाना होगा, डेवलप करना होगा। तो फॉर एग्जाम्पल, पता नहीं आप लोगों में से कितनों ने सिक्स सिग्मा सुना है। सिक्स सिग्मा जो है ये एक टेक्नोलॉजी है, एक प्रोसेस है, मैनेजमेंट प्रोसेस है, इसमें हर एक कंपनी में उसके जो भी प्रोडक्ट्स हैं उसमें सुधार लाया जाता है। तो सिक्स सिग्मा एक टेक्निक है। तो जैसे हम सिक्स सिग्मा के बारे में बताएं, कैन कम्युनिकेट द चेंज विजन। फिर हमको जो है चौथा एस्पेक्ट ये है कि भाई हम जो भी चेंज चाह रहे हैं, जो भी तब्दीली चाह रहे हैं, उसको हम बताएं, लोगों को कम्युनिकेट करें। एम्पावर एम्प्लॉइज फॉर ब्रॉड बेस्ड एक्शन। उसके बाद हमारे जितने भी काम करने वाले लोग हैं, हमारे जितने भी एम्प्लॉइज हैं, उनको हम जो है वो एक ब्रॉड बेस्ड एक्शन प्लान बताएं। भाई क्या क्या करना है, आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, एक्स को क्या करना है, वाई को क्या करना है। और एग्रेसिव रिजल्ट ओरिएंटेड ट्रेनिंग एट ऑल लेवल्स। अब ये सिक्स सिग्मा अगर हमको हमारी कंपनी में लाना है तो हर एक लेवल पे हमको क्या क्या ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। वो ट्रेनिंग पहले हम उस ट्रेनिंग की लिस्ट बनाएं और लोगों को आइडेंटिफाई करें और फिर उनको जो है वो ट्रेनिंग दें। फिर उसके बाद हमको जनरेट शॉर्ट टर्म विंस। फिर उस बाद क्या करना है कि भाई समझो अगर हमारा गोल समझो 1.5 साल में अगर हमको सिक्स सिग्मा टेक्निक पूरी कंपनी में इम्प्लीमेंट करनी है, तो हम हर 3 महीने में एक ये करें कि भाई हमने समझो गोल लाया कि भाई 3 महीने में हम ये काम करेंगे, 6 महीने में हम ये काम करेंगे। तो जनरेट शॉर्ट टर्म विंस, देन कंसोलिडेट गेन्स एंड प्रोड्यूस मोर चेंज। फिर उसके बाद हमने 3 महीने में समझो हमको 18 एक सीढ़ी की 18 पायरियां चढ़नी, हमने 6 पायरियां चढ़ ली, एक पड़ाव आ गया। फिर हम दूसरे पड़ाव के लिए, तीसरे पड़ाव के लिए, ऐसे करते करते हम अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचे। और 8वां काम है उसमें एंकर न्यू अप्रोचेस इन द कल्चर। और ये सब करते हुए जो है हमको नए तरीके कार ढूंढना पड़ेंगे, नई स्ट्रेटजीज और नए ऐसे मसलों को हल करे, इसके बारे में हमको ये करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो है हमको जैसे सिक्स सिग्मा में जो है एक मास्टर बेल्ट होता है, एक चैंपियन होता है, एक ब्लैक बेल्ट होता है, एक ग्रीन बेल्ट होता है। तो इस तरीके से ये सारे उसके स्टेजेस हैं सिक्स सिग्मा डेवलप करने, टेक्निक डेवलप करने के। नाउ व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ सक्सेसफुल चेंज। अगर हम अपनी कंपनी में या अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई तब्दीली लाना चाहते हैं तो उसके क्या क्या अनासिर होंगे, व्हाट विल बी द एलिमेंट्स। तो सबसे पहले उसमें है विजन, सेकंड है मोटिवेटिंग फोर्स, थर्ड इज स्ट्रॉन्ग एंड रेस्पेक्टेड लीडर, फोर्थ इज ब्रॉड पार्टिसिपेशन, देन कम्युनिकेशन, देन ट्रेनिंग एंड एजुकेशन एंड रीइंफोर्समेंट। नाउ लीडर्स, हम लीडर्स के बारे में अक्सर सोचते रहते हैं, लीडर लीडर हम कहते हैं। अब वैसे तो लीडर की बहुत सारी किस्में हैं, बहुत सारे टाइप्स के लीडर्स हैं। किसी ने 8 कहा, किसी ने 6 कहा, किसी ने 9 कहा, किसी ने 10 टाइप के लीडर्स होते हैं। बट ब्रॉडली स्पीकिंग देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लीडर्स। नंबर 1 इज ऑटोक्रेटिक लीडर, नंबर 2 इज डेमोक्रेटिक लीडर एंड नंबर 3 इज फ्री रीन। ये एक्चुअली स्टाइल ऑफ लीडरशिप है। इन ऑटोक्रेटिक लीडर, लीडर जो बोले, मैं जो बोलूं सो कानून, ये होता है ऑटोक्रेटिक लीडर। डेमोक्रेटिक लीडर, डेमोक्रेटिक लीडर में कैसा है कि भाई जमहूरियत पसंद है, पूरी टीम को साथ में लेके चलता है, सबकी सुनता है, अपनी राय सब पे लाता नहीं, अपनी राय सबसे मनवाता नहीं। ऐसा लीडर हो वो डेमोक्रेटिक लीडर होता है। और फ्री विल लीडर बोले तो चलो तुम उधर को हवा हो जिधर की, ना ऑटोक्रेटिक ना डेमोक्रेटिक, लोग जैसा कर रहे, उसकी टीम जैसा कर रही, जो कर रही, सब उसको चल जाता। ऐसे लीडर को जो है वो फ्री रीन लीडर कहते हैं।
तो लीडर्स जो है वो लोगों को लीड करते हैं। क्या करते हैं वो? दे प्रोवाइड डायरेक्शन। हमने शुरुआत में 4 चीजें की थी। दे प्रोवाइड डायरेक्शन, दे कम्युनिकेट, दे इनेबल, कोच, काउंसिल एंड दे रिकॉग्नाइज रिजल्ट्स एंड रीइंफोर्स डिजायर्ड बिहेवियर। तो लीडर्स रास्ता दिखाता है। लीडर जो है वो अंडरस्टैंडिंग और उम्मीद दिखलाता है। लीडर जो है वो लोगों को कामयाबी के लिए सेट करता है। और लीडर क्या करता है? हर एक आदमी को सही काम करते हुए पकड़ता है। गलत काम करे तो थोड़ा नजरअंदाज कर देता, ओवरलुक कर देता। ना ये डाल्टन एंड थॉमसन, ये दो मैनेजमेंट गुरुज हैं। इनकी जो है वो डाल्टन मॉडल फॉर करियर डेवलपमेंट, ये हम डिस्कस करेंगे। हम जब भी कोई जॉब करते, सर्विस करते, तो हमारे करियर स्टेज जो है वो एक तो ट्रेनिंग का होता है या अप्रेंटिस का होता है। फिर उसके बाद हम थोड़ा ऊपर जाते हैं, हम कंफर्म हो जाते हैं सादे, अगर हम वर्कर हैं तो वर्कर में, और अगर हम स्टाफ में है तो स्टाफ में। हम क्या हो जाते हैं? कलीग हो जाते हैं। फिर थोड़ा और काम करो तो मेंटर हो जाते हैं, सिखाने वाले हो जाते हैं, लोगों को लीडर बन जाते हैं। और फिर चौथे में जो है हम स्पॉन्सर बन जाते हैं, उसके भी ऊपर जाते हैं। अब हमारे करियर स्टेज के रोल के हिसाब से अप्रेंटिस क्या करता है? हेल्प करता है, और जो भी उसको डायरेक्शन दी जाती है उसको फॉलो करता है। वो कोई डायरेक्शन नहीं देता, बल्कि उसको जो ऊपर से जो इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, जो जो डायरेक्शन मिलती है, उस पे वो काम करता है। कलीग क्या करता है? वो अपना, उसको जो भी जिम्मेदारी दी गई है उसके हिसाब से वो काम करते रहता है। और मेंटर जो है, ये इसका रोल क्या रहता है? ये मैनेजर होता है। ये खुद भी काम करता है, प्लस उसके नीचे जो टीम है उसको भी डेवलप करता है और नेटवर्किंग करता है। और स्पॉन्सर जो है ये क्या करता है? ही शेप्स द ऑर्गेनाइजेशंस डायरेक्शन। लीडरशिप स्किल्स आर रिक्वायर्ड टू फंक्शन एज ए मेंटर एंड स्पॉन्सर। हमको लीडरशिप जो है, जो मेंटर पोजीशन पे है या स्पॉन्सर पोजीशन पे है, हमको उनके अंदर जो है लीडरशिप इनकलकेट करनी है। उनके अंदर जो है उनको लीडरशिप ट्रेनिंग देके उनको लीडर्स बनाना है। जॉर्ज फिशर का ये प्लॉट है। इसमें अगर आप देखेंगे कि 2 एक्सिस हैं। एक्स एक्सिस पे जो है वो टेक्निकल स्किल्स हैं, और वाई एक्सिस पे जो है वो पीपल स्किल्स है, लोगों की जो स्किल्स है। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं तो ये लो है और ये हाई है, ये लो है, ये हाई है, ये 0 है और ये बढ़ते जा रहा है। अगर जॉर्ज फिशर, ये सीईओ का मोटोरोला था, he was CEO at Motorola and Kodak, and he has a PhD in applied mathematics from Brown University. इसकी ये theory है कि भाई हमको अगर टेक्निकल स्किल्स एकदम हाई होना, तो हम ये एक्सिस पे चल सकते हैं। और अगर टोटल क्वालिटी फैसिलिटेटर्स हाई होना, तो हम वाई एक्सिस पे चल सकते हैं। लेकिन हमारा टारगेट जो है वो इन बिटवीन है। हमारे पास जो है टेक्निकल स्किल्स भी हो और पीपल स्किल्स भी हो। तो वी नीड एम्प्लॉइज विद बोथ पीपल एंड टेक्निकल स्किल। खाली एक स्किल हो तो काम नहीं चलेगा। तो हमारे एम्प्लॉइज के पास जो है दोनों स्किल्स जो है वो तवाजुन में हो, बैलेंस में हो। अब हम जो है थोड़े कोट्स देखेंगे लीडरशिप के बारे में। सही बुखारी की हदीस है, फुलफिल द ट्रस्ट for the one who entrusted you and do not cheat the one who cheated you। यानी जिसने आपको चीट किया हम उसको चीट ना करें, और जिसने हमें जिम्मेदारी दी है हम उसकी जिम्मेदारी का पास रखें। If you do not believe in your own ability to accomplish, believe in Allah's ability to help. We must realize that Allah has created us imperfect. So he doesn't expect perfection from us, but he does expect us to try our best. ऐसा नहीं कि अल्लाह ने मुझे लंगड़ा पैदा किया, अब क्या मैं जिंदगी भर उसको लेकर रोता बैठूं।
अल्लाह ने मुझे जिस हाल में पैदा किया है, मैं अपने जिम्मेदारी पे जो है मैं उसको और बेहतर बनूं, ये कोशिश मुझको करनी है। फिर बुखारी और मुस्लिम की एक हदीस है, बिहोल्ड एवरी वन ऑफ यू इज अ लीडर। होशियार, खबरदार, आप में से हर कोई जो लीडर है। एंड यू शैल बी आस्क्ड अबाउट दोज यू लीड, और आप जिसको लीड करते हैं उसके बारे में आपसे सवाल किया जाएगा। इमाम इज लीडर ओवर द पीपल एंड शैल बी आस्क्ड अबाउट देम। एक मस्जिद का इमाम, एक समाज का, सोसाइटी का इमाम, वो लीडर है अवाम का, और अवाम के बारे में उससे सवाल किया जाएगा। Man is a leader of the house and shall be asked about his household. एक एक आदमी जो है वो अपने घर का लीडर है, अमीर है, और उसके घर के बारे में पूछा जाएगा। A woman is a leader over her children. एक औरत अपने बच्चों के ऊपर सरदार है, and she shall be asked about them. और उसको उसके बच्चों के बारे में पूछा जाएगा। The very essence of leadership is you have to have a vision. हमको दुनिया में जो है कोई मकसद जिंदगी होना चाहिए। It's got to be a vision you articulate forcefully on every occasion. You can't blow an uncertain trumpet. हमको जो है उस विजन पे हमेशा फोकस करते होना है, और अगर हम नहीं कर रहे हैं तो हमको खाली पीली जो अपना भोग नहीं बजाना है। लीडरशिप एंड लर्निंग आर इंडिस्पेंसिबल टू ईच अदर। अगर कोई ये सोचे कि मैं बिना पढ़े लिखे, बिना सीखे समझे मैं लीडर बन जाऊं, तो ये नामुमकिन है। किसने कहा है? जॉन एफ कैनेडी ने कहा है। The speed of leader determines the rate of the pack. The speed of the leader, लीडर की रफ्तार जो है तय करती है कि भाई उसकी टीम जो है वो कैसे चलेगी। It is the capacity to develop and improve their skills that distinguishes leader from their followers. It is the capacity to develop and improve the skills. ने अपने फॉलोअर्स की स्किल्स, उनके अंदर जो हुनर है उसको इम्प्रूव करना और उसको बढ़ाना जो है, ये कैपेसिटी होती है एक लीडर की। The best coaches we know what the end results look like. If you don't know what the end result is supposed to look like, you can't get there. यानी एक लीडर को जो है उसके अंजाम का अंदाजा होता है, तो वो देखता है कि भाई हमारा सफर कब खत्म हो रहा है, कैसे खत्म हो रहा है। और अगर हमारे लीडर में ये सफर के इख्तिताम का अंदाजा नहीं है, तो वो जो है बेहतर लीडर नहीं है, और वो उस अंजाम तक नहीं पहुंच सकता, अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। Failing to prepare is preparing to fail. यानी अगर हम किसी की तैयारी में, किसी काम की, किसी मकसद की तैयारी में नाकाम हो रहे हैं, तो इसका मकसद मतलब ये है कि हम फेल होने की तैयारी कर रहे हैं। The secret of success is constancy of purpose. Constancy of purpose. यानी कामयाबी की कुंजी, कामयाबी का सीक्रेट क्या है? मुस्तकिल मिजाजी, स्टेडफास्टनेस, द कॉन्स्टेंसी ऑफ पर्पस। यानी मकसद की मुस्तकिलन याद दहानी जो है वो कामयाबी की कुंजी है। मैनेजमेंट इज डूइंग थिंग्स राइट। मैनेजमेंट क्या कहता है कि भाई जो भी आप कर रहे हो सही करो। और लीडरशिप क्या है? लीडरशिप इज डूइंग द राइट थिंग्स। और लीडरशिप क्या है कि भाई सही काम ही करना, जो भी करना सही करना इज मैनेजमेंट, और सही काम ही करना जो है दैट इज लीडरशिप। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि लीडरशिप की वजह से जो तब्दीलियां लाई जाती हैं वो क्या है। चेंज रिक्वायर्स शिफ्ट्स इन नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड।
हमारी हमारी जिंदगी का जो महवर है वो तीन चीजों पे है। एक तो नॉलेज है, इल्म, और एक स्किल है, हुनर, और एक एटीट्यूड एंड डिजायर है। इन्हें भाई मेरे को क्या करना, सवेरे उठना, शाम तक काम करना, फिर आके सोना तो है, मैं जिंदगी भर दिन भर सोता रहूं, ये एटीट्यूड हो गया। और ख्वाहिश, तो नॉलेज क्या है कि भाई व्हाट, व्हाई, क्या, क्यों, और स्किल हाउ टू, कैसे, एंड एटीट्यूड मीन्स वांट टू। तो ये आदत है, बिहेवियर है और माइंडसेट है। ये असल में जो है इन तीनों चीजों को मिला के हमारा इल्म, हमारा हुनर और हमारा एटीट्यूड, ये मिल के जो है वो तब्दीली लाई जा सकती है। अगर इसमें हम किसी भी एक चीज में कम पड़ गए तो वो डिजायर्ड और जो चाहत की तब्दीली है वो नहीं ला सकते। तो नाउ वी विल सी व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। वन इज मिशन, second is vision, third is values, fourth is objective, and strategies, goals, initiatives and deployment. अभी हमारा जो बिहेवियर है वो कैसा रहता है, वक्त के साथ साथ जो है हमारा बिहेवियर जो है वो कैसे तब्दील होता है, वो इस ग्राफ में समझाया गया है। देन रिएक्शन टू न्यू आइडिया, फेज 1 रिएक्टिव, phase 2 ego, and phase 3 purposeful. Here leaders recognize different levels of activity and job responsibilities. Then running effective meetings, ये हमारे लीडर जो मीटिंग्स करते हैं ये इफेक्टिव होना चाहिए। ये स्लाइड्स का जो है मकसद है कि भाई हमारी मीटिंग्स जो है वेल डिफाइंड हो, डिजायर्ड आउटकम्स हो, और उसमें एजेंडा हो, रोल्स हो, जो भी मीटिंग हो रही है उसके मिनट्स लिए जाएं और उसको टाइम बाउंड तरीके पे जो है वो अंजाम दिया जाए। अब मीटिंग में जो है क्या होता है, एक मीटिंग लीडर होता है, एक टाइम कीपर होता है, एक फैसिलिटेटर होता है, एक जो मिनट्स बनाता है, और बाकी लोग जो है वो लिखते रहते हैं। ये डमैक करके एक 6 सिग्मा का प्रोसेस इंप्रूवमेंट मॉडल है। इसमें कोई भी काम करना हो तो हम उसको पहले डिफाइन करें, फिर उसको जो है मेजर करें, उसको एनालाइज करें, इम्प्रूव करें और कंट्रोल करें। डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इम्प्रूव एंड कंट्रोल। इससे क्या होगा, जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी हमारा टारगेट है, वो उसमें जो है वो बेहतरी आती जाएगी और उसमें जो है काफी इंप्रूवमेंट आता जाएगा। दिस इज दिस 6 सिग्मा प्रोसेस इंप्रूवमेंट मॉडल। देन लीडरशिप के बारे में हम ये सोचते हैं कि बाबा लीडरशिप क्या है, बोले ये तो एक बहुत रेयर स्किल है, ने बहुत मुश्किल से हम लीडर बन सकते हैं, ऐसा नहीं है। फिर हमारा दूसरी गलतफहमी ये है कि लीडर्स जो है वो पैदा होते हैं, लीडर्स आर बॉर्न, आर नॉट मेड। दिस इज आल्सो रॉन्ग। लीडर्स आर कैरिस्मेटिक, कि लीडर जो है वो उसमें बहुत करिश्मा होता है, ऐसा भी नहीं है। बिना पर्सनालिटी के भी बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स इस दुनिया में गुजरे हैं। लीडरशिप एग्जिस्ट ओनली एट द टॉप ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ये भी गलत चीज है। हमारा नीचे से लेके ऊपर तक अगर हमारे अंदर लीडर्स हों तो वो कंपनी, वो ऑर्गेनाइजेशन, वो कॉम तरक्की करती है। लीडर कंट्रोल्स, डायरेक्ट, स्पॉट्स एंड मैनिपुलेट्स, ये भी गलत फहमी है। तो लीडरशिप के लिए क्या है, व्हाट आर द वेज टू डेवलप लीडरशिप? रीड बुक्स एंड आर्टिकल्स, अटेंड कोर्सेस, discuss this subject with colleagues, and practice. Becoming a leader is like learning to play the violin in public. तो लीडरशिप जो है ये एक ऐसा फन है, एक ऐसा हुनर है, एक ऐसी स्किल है कि इसको हासिल किया जा सकता है। ये खुदादाद भी होता है और हम इसको हासिल भी कर सकते हैं। जिस तरह कोई बॉडी बिल्डर अपनी माँ से बॉडी बिल्डर बन के पैदा नहीं होता, बल्कि जिम में जाके एक्सरसाइज करके वो एक बॉडी बिल्डर बनता है।
इस तरह कोई एथलेटिक्स, जैवलिन थ्रो करने वाला, फास्ट दौड़ने वाला, वो अपनी माँ के पेट से पैदा होती ये सब काम नहीं करने लगता, बल्कि उसको मेहनत करता है, तब वो हुनर उसके अंदर आता है। तो इसी तरह लीडरशिप जो है ये एक स्किल है और ये एक हुनर है जिसे हम हासिल कर सकते हैं। एंड कैन आई बी सक्सेसफुल? अगर आप ये सोचते होंगे कि क्या मैं कामयाब हो सकता हूँ, हो सकती हूँ, तो इसके बारे में मार्गरेट मीड का एक मकला है, never doubt that a small group of committed people can change the world. Indeed, it is the only thing that ever has. हम ये ना सोचे कि भाई मैं अकेला या मैं अकेली क्या करूं। आप इरादा कीजिए और फिर जो वेरियस स्टेप्स हैं उन स्टेप्स के ऊपर अमल कीजिए। इंशाअल्लाह हमारे अंदर जो है वो लीडरशिप क्वालिटी आना शुरू हो जाएगी। और फिर जैसा कि हमने बताया कि भाई प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और इसी के साथ जो है मेरा टॉक खत्म होता है। और बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने बहुत आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से सुना। और अगर आपके सवाल जवाबात हों तो हम उस पर जो है बात करें। Thank you, sir, for your valuable and insightful session. Now, I would like the participant to please, if you have any questions, so you can ask. Otherwise, if you hesitate to ask, you can also type in the chat box. We can read out the questions. अगर कोई सवाल पूछना चाहता है तो वो पूछ सकता है और चैट बॉक्स में भी लिख सकता है सवाल। Anyone? Thank you once again, Irfan sir, for your knowledgeable session on leadership skills. I hope the participants and others will learn many things from your session and implement in their life. So we will be ending the session now. So, thank you once again, sir.